نماز کے کل کتنے فرائض اور کون کون سے ہیں؟ فرض کہتے کسے ہیں؟ ان سب باتوں کو آج اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اور میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے یوٹیوب پر نماز کے شرائطوں کے بارے میں، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے وہ ویڈیو میرا نہیں دیکھا ہے تو جا کر میرا وہ ویڈیو دیکھے، اور اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں کتنے نماز کے فرائض ہیں ان سب کو ترتیب بار کتنے ہیں اس سب کو لکھوں گا ڈسکرپشن میں، ضرور دیکھیں۔ اور اگر پسند لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرض کہتے کسے ہیں؟ پہلے اس کی تعریف سن لیجیے۔ فرض وہ فعل ہے کہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑنا۔ فرض وہ ہے کہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑنا سخت گناہ ہے، اور اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو اس کے بغیر عبادت درست نہیں ہوتی ہے، اس کو فرض کہتے ہیں۔ اور کتنے نماز کے فرائض ہیں اگر آپ کو پتا نہیں ہو تو یہ پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو نماز کے شرائط معلوم نہ ہو اور نماز کے اگر فرائض معلوم نہ ہو تو میرا یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کتنے فرائض ہیں اور کتنے شرائط ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند لگے تو میں اس کے بعد نماز کے واجبات اور نماز کے کتنے سنت ہیں ان سب چیزوں کا بھی ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور نماز میں کل 6 فرض ہے۔ کتنے ہیں؟ نماز کے کل 6 فرائض ہے۔ پہلی فرض ہے قیام، دوسری ہے قیرت، تیسری ہے رکوع، چوتھی ہے سجدہ، پانچویں ہے قاعدہ آخرہ، اور چھٹا ہے خروج بسنوعی۔ یہ 6 نماز کے فرائض ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بھی رہ جائے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے تو سخت گناہ گار ہوں گے اور آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ کچھ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کامنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ ابھی فی الحال تھوڑا تھوڑا کر کے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نماز کی پہلی فرض ہے قیرت۔ قیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کی دونوں رکعتوں میں وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں، فرض کی دو پہلی اور دوسری رکعت میں، وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے ان میں قرات نہ پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، یعنی فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں، وتر کی تینوں رکعت میں، نوافل کی ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ اور قرات سورت نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور
किरत करने का मतलब ये है कि ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं अकेले तो बहुत जोर जोर से किरत करते हैं, उस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। किरत करने का मतलब है कि आप अकेले नमाज पढ़ रहे हो, अकेले, तो आपको इतनी जोर से किरत करनी है कि आप खुद सुन सके इतनी आवाज में, दूसरे नहीं, आप खुद सुन सके उतनी आवाज में आपको किरत करनी है। अकेले पढ़ रहे हो तो हर एक फर्ज की पहली दूसरी रकात में, नाफिल की हर एक रकात में और वित्र वाजिब की हर एक रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ने का है। और अगर इमाम साहब के पीछे नमाज आप पढ़ रहे हो तो आपको किरत नहीं करनी है, यानी सूरह फातिहा और सूरत नहीं पढ़नी है। उसके अलावा चीजें जैसे कि सना, रुकू की तस्बीह, सजदे की तस्बीह, तशहुद, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा, इन सब चीजों को आपको भी, इमाम के पीछे है तो आपको भी इन सब चीजों को पढ़ने का है। नहीं जानते हैं अगर तो किसी से आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाकर इमाम साहब से सीखने की कोशिश कीजिए, और सीखना जरूरी है। इल्म हासिल करना फर्ज है, इल्म हासिल करना फर्ज है, तो इस फर्ज को आप जानबूझकर छोड़ नहीं सकते, वरना आप गुनाहगार होंगे। तो किरत उसको कहते हैं। तीसरा फर्ज है रुकू। रुकू करना, रुकू का अदना दर्जा ये है कि हाथ घुटने तक पहुंच जाए, और पूरा रुकू यानी मुकम्मल रुकू ये है कि पीठ सीधी बिछा दे जाए और सर और पीठ के बराबर हो, कहीं ऊंच नीच ना हो। यानी ये अगर आपका सर है और ये पीठ है तो ये सर और ये पीठ और सर दोनों बराबर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रुकू करेंगे तो सर बिल्कुल ऊंचा करके ऐसे करके रखेंगे और पीठ बिल्कुल ना झुका देंगे, तो इस तरह से नहीं, पीठ और सर दोनों बराबर में होना चाहिए, इसको रुकू कहते हैं। और नमाज का चौथा फर्ज है सजदा। तो सजदे की हकीकत यह है कि पेशानी, ये कपाल, पेशानी जमीन पर जमा होना चाहिए, नाक और पेशानी दोनों जमीन पर लगना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं सजदे के पेशानी से जमीन पे लगा देते हैं, लेकिन नाक जमीन पे लगाते नहीं है। और सजदा करने के वक्त पैर की उंगलियां भी जमीन से इस तरह से दबा करके लगाना वाजिब है। कम से कम 3 उंगली इस तरह से दबा करके, जमीन से दबा करके लगाना वाजिब है। अगर आपकी वाजिब आपने जानबूझकर छोड़ दिया तो आपकी नमाज नहीं होगी, और अगर भूल से छूट गई तो सजदा 100 करने पड़ेंगे। कम से कम 3 उंगली की पीठ जमीन पर दबा करके लगाना वाजिब है। लेकिन बहुत सारे हजरात जो सिर्फ दुनियावी इल्म हासिल कर चुके होते हैं, यानी कि कॉलेज में और डिग्रियां लेकर बैठे होते हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम की और जो आपके ऊपर फर्ज है उन सब बातों के बारे में उसके पास इल्म नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, इल्ला माशाल्लाह, बहुत सारे पढ़े लिखे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ अपनी दुनियावी और दीन भी पढ़ते हैं, दीन भी सीखते हैं। बहुत सारे ऐसे भी है, और बहुत सारे को मैंने खुद देखा है कि बहुत एजुकेटेड आदमी होते हैं, लेकिन वो नमाज पढ़ने आते हैं तो सजदा करने के वक्त दोनों पैर जो जमीन पे से रखना चाहिए तो लगाते नहीं है, बल्कि जमीन से ऊंचा करके रखते हैं, और ऐसे रखना चाहिए, जमीन पे से दबा के लगाना चाहिए। तो वो आदमी क्या करते हैं, ऐसे दोनों पैर को ऐसे मिला करके ऊंचा करके रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
दोनों पैर की 5 उंगलियां ना हो सके तो कम से कम 3 उंगलियां जमीन पे दबा के लगाना वाजिब है। अगर आप वाजिब जानबूझकर छोड़ देंगे और नमाज पढ़ लेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, और अगर भूल से छूट जाए तो सजदा 100 करना पड़ेगा, तब जाके आपकी नमाज होगी। तो ये सजदा करने की हकीकत है। कैसे सजदा करेंगे? पेशानी को और जमीन पर, पेशानी और नाक को जमीन पर, और पैर की उंगलियां भी दबा के लगाना है, इसको सजदा कहते हैं। 5वां फर्ज है कायदा आखिरा। कायदा आखिरा का मतलब यह है कि नमाज की रकातें पूरी करने के बाद, इसको कहते हैं नमाज, कायदा आखिरा उसको कहते हैं कि नमाजी की रकातें पूरी करने के बाद अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा, उतनी देर तक बैठने को कायदा आखिरा कहते हैं, और ये फर्ज है। और खुरूजे बेसनुई उसको कहते हैं कि नमाज, कायदा आखिरा के बाद नमाज को तोड़ देने वाला काम कसदन करने को खुरूजे बेसनुई कहते हैं। लेकिन सलाम के अलावा कोई दूसरा नमाज को तोड़ देने वाला काम कसदन पाया गया तो नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। यानी हम नमाज जब पूरा करके कायदा आखिरा करने के बाद हम सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल करते हैं, और अगर आपने सलाम फेरे बगैर कोई दूसरा लफ्ज बोल दिया और नमाज से बाहर निकल गए तो आपको नमाज दोबारा पढ़ना वाजिब है। और कयाम जो फर्ज है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि नमाज कयाम फर्ज होते हैं तो लोग, आपके ऊपर अगर कयाम फर्ज है तो आपको कयाम ही यानी खड़े रहकर ही नियत बांधना है। लेकिन बहुत सारी मैंने अपनी माँ बहनों को देखा है कि नमाज पढ़ती है तो जब शुरू करती है तो खड़ी होकर नमाज शुरू करती है, लेकिन एक रकात पूरी करने के बाद वो बैठ जाती है, अब दूसरी तीसरी चौथी रकात वो बैठे बैठे पढ़ती है। तो ऐसा ना करे, आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आपके ऊपर कयाम फर्ज है तो आपको कयाम खड़े खड़े ही नमाज पढ़नी पड़ेगी। अगर मेरी माँ बहन नमाज बैठकर पढ़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ नफल नमाज बैठकर पढ़ने का हुक्म है। बाकी सुन्नत, फर्ज, वाजिब ये सब नमाजें आपको खड़े रहकर ही पढ़ने का हुक्म है। खड़े होकर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो नमाज पढ़ने वालों से मेरी गुजारिश है, मुअद्दबाना अपील है कि नमाज के जो जरूरियाती मसाइल हैं उनको जरूर सीखें। चाहे अपने मस्जिद के इमाम साहब से नमाज के जरूरियाती मसाइल जरूर सीखने जाएं और जरूर सीखें, इल्म हासिल करें कि क्या क्या चीज आपको नमाज के अंदर पढ़ना है, क्या नहीं पढ़नी है, किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से नहीं पढ़ते हैं, उन सब चीज को सीखना आपके ऊपर फर्ज है। इल्म हासिल करना आपके ऊपर फर्ज है। कोई आपको घर पे आके आपको कुछ सिखाएगा नहीं। अगर आपको प्यास लगी हो तो आपको पानी पीने जाना पड़ेगा, पानी आपके पास नहीं आएंगे। तो इसी तरह इल्म हासिल करने की कोशिश करें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर मेरा दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं, नमाज के वाजिबात और नमाज के सुन्नत वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और मेरे पहला वीडियो जो नमाज के शराइत वाला वीडियो है वो अगर नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस चैनल के अंदर, मेरे चैनल के अंदर नात और मनक़बत और अहले बैत अतहार की शान में शेर व शायरी के भी वीडियो बनाता हूं। और अगर आप लोग शेर व शायरी के शौकीन है तो जरूर इस चैनल में विजिट कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।